Hello friends, I am Roshni and I welcome you on our YouTube channel Job Junctions. Like every time, again we are here with another job vacancy for you. Yes, and this time we are having a job vacancy for engineers. So hey engineers, please be with us, watch this video completely because आप सभी के लिए we have a very good opportunity. So let's talk about the vacancy. So this is a vacancy released by Union Public Service Commission. UPSC has released a notification on 18th of September. The notification is released for the post of Engineering Services Examination 2025. Yes. So I would like to ask you all, please be with us till the end of the video because इस वीडियो में हमने सारी डिटेल्स कवर की है. How to fill the form, what are the important dates, age criteria, nationality, फिजिकल आपकी क्या फिटनेस होनी चाहिए, हाउ टू फिल दी फॉर्म, हाउ टू चूज दी अपलोड डाउनलोड दी एडमिट कार्ड एंड एवरीथिंग इन डिटेल. फीस क्या रहने वाली यहाँ पे, हाउ व्हाट आर दी प्रोसीजर्स. सो प्लीज़ बी विद अस टिल डिटेल. अब तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद ऑल योर इंजीनियर फ्रेंड्स. सो लेट्स गो बैक. So what important? Candidates to ensure their eligibility for the examination. First thing is that all the notification is in online and the form filling will be online only. No offline form filling will be there. So आपको online notification link को click करके you have to go and get yourself registered. First step will be to register yourself. While applying, कैसे अप्लाई करना है, जैसा बताया ऑनलाइन अप्लाई करना है यूजिंग द वेबसाइट www.upsc.nic.in. You have to get registered yourself first time using one time registration OTR. So first step will be OTR, one time registration. For that आपके पास आपका एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी होनी चाहिए जहाँ से आपका OTP confirmation के थ्रू you will have received the credentials. OTR has to be registered only once in lifetime and this can be done anytime throughout the year. A candidate who is willing to apply for engineering services examination shall be required to apply online and submit the required information supporting documents toward various claims. So next step आता है आपका modification in OTR profile. अगर आपको कोई भी modification करना है then there are dates कि आप कोई changing अपना surname या अपना address कुछ भी change करना चाहते हैं then you can also do up to 15th of October 2024. मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन OTR प्रोफाइल. अगर एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी कोई मिस्टेक हो गई है उसको अगर आपको मॉडिफाई करना है देन द कमीशन हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड टू एक्सटेंड दी फैसिलिटी. दिस विंडो विल रिमेन ओपन फॉर 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द सेम, दैट इज 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आपका यहाँ इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट दी कैंडिडेट शुड हैव डिटेल्स ऑफ वन फोटो ID कार्ड. जब भी फॉर्म आप फिल करने बैठते हैं ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए you should have any one government identified license, like you can have your Aadhaar card, PAN card, driving license, anything. You should have one document with you. Talking about the last date of application of form. Online application can be filled up to 18/9/2024 to 8/10/2024. 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आपके पास समय होगा अपने फॉर्म को फिल करने का. 6 o'clock 6 बजे ये साइट आपकी बंद हो जाएगी. कोशिश करें उससे पहले ही फॉर्म को फिल कर लें, अभी टाइम है हमारे पास काफ़ी. एलिजिबल कैंडिडेट शुड हैव इशूड एन e-admission सर्टिफिकेट ऑन दी लास्ट वर्किंग डे ऑफ दी प्रीसीडिंग वीक ऑफ द डेट ऑफ एग्जामिनेशन. यू शुड हैव एन एडमिट कार्ड आपके पास हो जाएगा. अगर हम बात करें एग्जामिनेशन की तो यहाँ पे पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स है. कैंडिडेट शुड नॉट दैट देयर विल बी पेनल्टी. नेगेटिव मार्किंग होगा पेपर में तो आपको ध्यान देना है. एग्जामिनेशन UPSC लेवल का कोई भी एग्जामिनेशन आपका 3 टायर्स में होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू. तो फर्स्टली यू हैव टू फोकस ऑन द प्रीलिम्स. मगर आपको याद ये रखना है फ्रेंड्स कि प्रीलिम्स के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता आपके मेंस और इंटरव्यू के लिए. सो कीप दैट इन योर माइंड. आपकी प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली होनी चाहिए. अगर हम बात करें एप्लीकेशन काउंटर की फॉर दी वेबसाइट और guidance of candidate, then for any guidance you can have any doubt you can contact on the telephone numbers given जो आपको given है. Also you can have raise your query on the given sites. Apart from अगर इसके बाद हम बात करें कि how will be your
ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल, एक ये हमारा न्यू आया है क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल। ये एक न्यू फैसिलिटी लॉन्च की गई है। कमीशन हैज इंट्रोड्यूस अ टाइम फ्रेम ऑफ 7 days, दैट इज फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन डेट टू 6 PM ऑफ द 7th date is fixed for candidate to make representation on the commission on the question asked in the paper if you have any query। बट ये सारी चीज़ें आफ्टर एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं हम। पहले आपको फॉर्म फिल करना है, फॉर्म में आपके नेम, आपका साइन, एवरीथिंग शुड बी क्लियर, क्योंकि उसी के हिसाब से आपका वेरिफिकेशन होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिक्रूटमेंट पोस्ट, पोस्ट की अगर हम बात करें, टोटल वी हैव 232 पोस्ट, टोटल 232 पोस्ट हैं, एंड दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज। क्या क्या कैटेगरीज हैं? सिविल इंजीनियरिंग, सेकेंड है हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन वी हैव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंड देन वी हैव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो आप किसी भी फील्ड से इंजीनियरिंग आपने की है, देन यू आर एलिजिबल। द नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड इन दी इज एक्सपेक्टेड टू बी 232 अप्रॉक्सीमेटली। सो व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड, टोटल वैकेंसीज 232 हैं, जहाँ पे आपकी 12 वैकेंसीज फॉर द पर्सन विद बेंचमार्क PWBD की वैकेंसी इंक्लूड करके 232। एज पर गवर्नमेंट रिजर्वेशन मिलेगा आपको नॉन क्रीमी लेयर्स वालों को। अगर हम बात करें पोस्ट की, सो ग्रुप ए में यहाँ पे हमारे पास 2 तरह की जॉब हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। सो कैटेगरी 1 सिविल इंजीनियर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ए की जॉब्स हैं। सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज ग्रुप ए, सर्वे ऑफ इंडिया ग्रुप ए, AEE इन बॉर्डर रोड्स इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, AEE इन MES सर्वेयर केडर, इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज, सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग ग्रुप ए सर्विसेज। Then we have category 2 mechanical engineering. In the category 2 we have group A and group B service post, Indian Defence Service of Engineers, Indian Naval Armament Services, Central Power Engineering Services, Defence Aeronautical Quality Assurance Services, AEE in Border Roads Engineering Services, Indian Naval Material Management Services, Indian Skill Development Services. This was for group A as well as group B. For the category 2, category 3 if we talk about, then we have group A and B services। यहाँ भी हमारे पास Indian Defence Services, Indian Naval Material Management Services, Indian Naval Armament Services, Defence Aeronautical Quality Assurance Services, Central Power Engineering Services grade A, Indian Skill Development Services, IEDS Assistant Director grade 1 as well as IEDS Assistant Director grade 2. So these are the posts in category 3. Coming to category 4, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, यहाँ भी हमारे पास ग्रुप ए एंड ग्रुप बी बोथ पोस्ट आर देयर। इंडियन टेलीकम्युनिकेशन ग्रेड ए, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज ग्रेड ए, इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग पोस्ट, इंडियन नेवल मटीरियल मैनेजमेंट सर्विसेज, डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विसेज, इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज, इंडियन रेडियो रेगुलेटरी सर्विसेज ग्रेड ए, IEDS असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 1 and IEDS Assistant Director grade 2. So these are the posts. So we have talked about the post. Now talking about the how you can choose your centers. While giving examination, आपके पास प्रीलिम्स के लिए ये सेंटर्स अवेलेबल हैं। 2025 में एग्जाम होने वाला है हमारा, सो अकॉर्डिंगली योर अवेलेबिलिटी, योर प्लान्स, यू कैन चूज योर सेंटर। नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास सेंटर्स हैं मेंस एग्जामिनेशन, बट मेंस विल बी after prelims. So firstly you have to look for the prelims examination and choose your centers accordingly. So after choosing your center, coming to the eligibility condition, क्या eligibility होनी चाहिए फॉर्म को फिल करने के लिए? You should be having a nationality, या तो आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, otherwise you can have an Indian citizen of India or subject of Nepal or subject of Bhutan or a Tibetan refugee who came over to India before 1st January 1962. आप सब अगर ऐसे फॉर्म भरते हैं आपको पता होगा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, बट इफ़ यू आर फिलिंग दिस फर्स्ट टाइम देन ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केनिया, युगांडा, United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia from Vietnam with the intention of permanently settling in India. Provided that a candidate belonging to category B, C, D above shall a person should have a proper certificate. Certificate proper होना चाहिए. Next we'll talk about the age limit.
आफ्टर द नेशनैलिटी, टॉकिंग अबाउट द एज लिमिट, आप 1 जनवरी 2025 को अगर आप 21 साल के हो चुके हैं या आप 30 साल से कम हैं तो आप एलिजिबल हैं. दैट मीन्स attaining the age of 21 year and not have attained the age of 30 year on 1st January 2025. In short अगर बात करें तो अगर आप 2 जनवरी 1995 से 1st January 2004 के बॉर्न हैं then you are eligible to fill this form. अपर एज लिमिट 30 years है जहाँ रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड है as per the government norms. Apart from that, if you are a part of any of these ऑर्गेनाइजेशन परमानेंटली और ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, अगर कॉन्ट्रैक्ट पे 3 साल से ज़्यादा है और परमानेंट पोस्ट पे हैं तो भी आप रिलैक्सेशन को एंजॉय कर सकते हो. उस बेनिफिट को आप लेके अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं. ST, SC, OBC, नॉन क्रीमी लेयर शुड हैव देयर सर्टिफिकेट कंप्लीशन. विदाउट सर्टिफिकेट ऑल्सो एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है, जब आप नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनाएंगे आपको 2022 टू 2024 इन दोनों साल का सर्टिफिकेशन आपके पास कंप्लीट रहना चाहिए, अदरवाइज आपका कैंडिडेचर शैल बी कैंसल्ड. तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं. सो फाइनेंशियल ईयर्स का आपको ध्यान रखना है. आफ्टर दैट इफ वी विल टॉक अबाउट द फीस, सो टॉकिंग अबाउट द फीस, द फी हियर इज देयर इज वेरी मिनिमम फीस एंड द फीस इज ₹200. बट क्वेश्चन इज हर किसी को फीस नहीं फिल करना है. अगर आप इफ यू आर इन एनी रिजर्वेशन कैटेगरी और you are a female then you should not have to pay any fee excepting females, ST, SC, PWD who are exempted from the payment of fee. Others are required to pay a fee of ₹200. So 200 is the amount. तो आप सब फिल कर सकते हैं. कैसे फिल करना है फ़ी को? यू कैन फिल दी वाया ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI ऑल्सो. बाकी जगह आजकल फैसिलिटी नहीं होती बट यहाँ आप कैश भी फ़ी पेमेंट कर सकते हैं. बट हाउ यू विल फ़ी, आपको एक अपना चालान, फ़ी चालान निकाल के आपको SBI के ब्रांच में सबमिट करना है. इट इज़ गिवन हियर. एप्लीकेंट्स हु ऑप्ट फॉर पे बाय कैश should print the system generated pay in sleep during part 2 of registration and deposit the fee at the counter of SBI bank branch on the next working day only. तो जिस दिन आपने फॉर्म से चालान निकाला है उसके नेक्स्ट डे ही आपको अपना फी सबमिशन करना है. एंड रेस्ट ऑनलाइन मोड से आप एग्जामिनेशन के लास्ट डे तक भी अपना फॉर्म फीस को पे कर सकते हैं. फी वंस पेड इज नॉट रिफंडेबल, ये आपको पता है. हाउ टू अप्लाई आपको बता दिया है सारा स्टेप. पहले OTR, देन एप्लीकेशन फॉर्म, देन फी सबमिशन. You have to choose your centers. This is a very important and a very tough examination, so you need to prepare yourself. आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, every details is there in notification, but still if you are facing any problem you can comment us. We will come up again with the solution for you. Friends, thank you for being with us till the last of the video, and if you are still not liked and subscribed our channel, kindly like and subscribe. Our whole team works for these kind of notification. काफ़ी मेहनत से आपके लिए नए नए जॉब वैकेंसीज के बारे में पता करते हैं. So if your comment, your likes and will gives us motivation to make these kind of video. Also for any other query you can go to our website www.jobjunctions.org. Please join our Telegram channel and WhatsApp group for the immediate update. Everything we have mentioned in the description box. Kindly check and connect with us. So we'll come up again with another kind of video where you can fill accordingly. So again we thank you from the Job Junctions where opportunity meets talent. Thank you.